Hello students, good morning all. Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. So guys, last class में any doubts please ask in the theory part. Oh, Yes, sir, I had a doubt in the stress strain curve. So in that, like at the maximum tensile strength, say Yes. it is 200, and if we keep a load of 200, so will it remain at equilibrium at point D, like at the maximum tensile strength point? Like if we keep a load of 200 attached to wire, then will it remain at equilibrium? Yes, like 200 तक तो maximum जा सकता है. Material can sustain 200. So, but like in the PDF which is sent, it says that beyond this point, additional strength is produced even if application of reduced force. So even if we keep the same force, it should continue to produce strain, right? नहीं, say if you have said 200, हाँ. So 200 से delta ज़्यादा किया 200.001. So, but like the PDF which you sent, it says that even if we reduce the force, it will keep on continue to produce strain, and it will ultimately fracture. नहीं, Like, जैसे it says that we can reduce the applied force, and even then, like it will produce strain. That's what it's saying. नहीं, what it means is, like say if you increase beyond 200, ठीक है? So let's say आपने 200 से ज़्यादा कर लिया. So 200, suppose 200 t की वैल्यू से 200.001 कर ली. तो 200.001 किया. So that means वो पीक को क्रॉस करेगा. Do you agree? Yes, sir. पीक को क्रॉस करेगा. पीक को क्रॉस करने के बाद उस मटेरियल का फेलियर होना चालू हो जाएगा. Yes, sir. फेलियर होना चालू हो जाएगा मतलब उसमें रीस्टोरिंग फोर्सेस. अब उसका ग्राफ दे हैव शोन, राइट? उसके पीक के बाद ग्राफ ऐसा है, राइट? Yes, sir. तो ये कौन सा ग्राफ है? रीस्टोरिंग फोर्सेस का ग्राफ है, राइट? Yes, sir. कम हो रहे हैं. रीस्टोरिंग फोर्सेस कम हो जा रहे हैं. तो दैट मींस जैसे ही आपने पीक को क्रॉस कराया, फिर थोड़ा सा कम भी फोर्स लगाओगे, तो कम कर लो. 196 मतलब यू आर इन दिस रीजन नाउ. Okay. Yes, sir. तो दैट मींस फेलियर हैज हैपेंड. अब वो सीधा स्नैपिंग की तरफ जा रहा है, मतलब ब्रिटल स्नैप हो जाएगा. Okay. So, sir, it's like once you cross this point, then you can apply a reduced force. Even after that, it will break. Yes, Okay. correct. Ultimate tensile strength के beyond point where, yes. Okay, sir. Thank you, sir. अन्वय, हाँ, it is that from NCERT. वो NCERT का ही है. Yes, sir. Yes, sir. And I also had a doubt from last class where you did an NCERT problem in which we had to find which one is stronger. What criteria did you use, sir? I think there was a confusion and I didn't follow up. Okay, ठीक है. So guys, voila, can somebody screen share? Who can screen share that graph? अरे हाँ, Arnav. Ara. Sorry, Ara. Where is Ara? Sir, I'll screen share. Yes, Ara. हाँ. So we can answer the same question using now. Anvay, can you answer that? Which point we should take for the strength? So we should consider the ultimate tensile strength because the like it remains at equilibrium in that point. So that's the maximum load it can take. So like if the maximum tensile strength is more, then the body can, like the material can take more load. So that's what will that's Right. what is the criteria we'll consider for whether the material is stronger or not. Correct. Okay, let him share the graph. Arav, please. So you haven't started teaching anything, right? No. Sir, I think you should stop Okay, the sure. screen sharing first so that he can do Oh, that. I should stop. Yeah. Ayush? Yes, sir. Homework where you have done till? Just the I've just started off the booklet, sir. Booklet only. Yeah, sir. Only the booklet. Just started. I gave the homework on. No, I mean I've done the booklet. Sorry, wrong term. Okay. So you will discuss HCV in the next class also, in the next class itself, or HCV we have to do it afterwards?
नहीं HCV गाइस लाइक अभी गाइस प्लीज साइमल्टेनियसली करते जाओ बिकॉज नाउ यू हैव बिकम सीनियर्स हो गए ना तो मतलब थोड़ा सा शुड नॉट Yes. आस्क Okay, sir. Okay. प्लीज अगर हो सकता है तो करते जाओ ठीक यार है sir. हाँ हाँ सर आप डिस्कस कभी करोगे होमवर्क? यस हाँ लाइक यू गाइस टेल जैसे थोड़ा एक मिनट हाँ विल कम टू दैट थोड़ा आज मुझे मैं ये वाला करके फिर अपन एंड में करते हैं शैल वी टॉक ओके सर ओके सर ओके सर थोड़ा सा हाँ सी सम स्टूडेंट आस्क्ड द डाउट वाज कौन सा लेना चाहिए राइट हाँ सो अल्टीमेट टेंसाइल वाला ठीक रहेगा सी कि whichever इज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ना उसके बियॉन्ड जब लोडिंग करते हैं क्योंकि इफ द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज हायर तो क्या हो जाएगा उसका स्ट्रेंथ भी इट विल बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रॉन्गर मटेरियल बिफोर इट ब्रेक्स डाउन राइट इसका डाउट था ये अंडरस्टूड Yes, sir, got it. Sir, but like in graph B, the proportionality limit is slightly higher than the ultimate tensile strength. So, sir, while comparing the strength of the two wires, do we compare their tensile strength to the proportionality limits? यार ये थोड़ा गड़बड़ हो गया इसका ना इन लोगों को थोड़ा सा नीचे देना चाहिए था ना है ना हाँ ये थोड़ा नीचे आता है आई मीन ये जो है प्रोपोर्शनैलिटी वाला जो है थोड़ा नीचे आता है अल्टीमेट थोड़ा सा ऊपर जाता है And sir, I had a small doubt. Sir, why does the stress decrease after the ultimate tensile strength to the fracture point? Like I saw the recording it, I was still confused. ओ उसके बाद तो मेटल फिर गिव अप हो गया उसका मतलब अल्टीमेट तक पहुंचा उसके बाद फिर अब क्या हो गया बॉन्ड्स में ब्रेक होना मतलब जो बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है मतलब स्ट्रक्चर पूरा डिटीरिएट हो रहा है उसके So, बाद sir, even if we add more load, the stress on the wire will decrease. यस जैसे पीक को आपने अचीव किया एंड इफ यू पीक इज जैसे अनवय वाज पॉइंटिंग आउट ना कि पीक इज 200 न्यूटन फिर 200.001 क्रॉस किया दैट मींस यू आर क्रॉसिंग द ग्राफ द पीक यू आर क्रॉसिंग द पीक जैसे ही क्रॉस करोगे फिर उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद तो ग्राफ में ऐसा कैसा डिप दिखा रहे हैं डिप तो डिप का मतलब है जो रीस्टोरिंग फोर्सेस है वो डिप हो गया मतलब अब मटेरियल में रीस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप होना कम हो गए राइट Okay, sir. Okay, sir. लेस लोड में भी आप जो है मोर स्ट्रेन करवा सकते हो लाइक दैट Okay, sir, got it. ओके हेलो सर यस हाँ सर मैंने लास्ट क्लास ऐड आज की इसमें 2 पिक्स होते हैं क्यों मुझे अब तक वो समझा नहीं क्यों होता है यार मतलब ये बोल रहे हो कि एक तो मतलब इन लोगों ने ऐसा पीक क्यों दिया ऐसा बोल रहे हो क्या हाँ बी वाले में दो ये मैक्सिमम हाँ ये थोड़ा सा यार ग्राफ मतलब ये जो एक्चुअली ऑब्टेन मटेरियल का ग्राफ ये वाला ग्राफ ऐसा है दिस इज अ करेक्ट ग्राफ यूजुअली सभी मटेरियल्स का इफ यू सी ना ग्राफ का ये ऐसे आता है और ये ऐसा इंक्रीज होके ऐसा जाता है दिस इज अ पीक ईयर बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यार वो प्रोपोर्शनल लिमिट ज्यादा है और ये बड़ा है ओके सर ठीक है हाँ यूजुअली सभी मटेरियल्स का ग्राफ देखो इन एनी बुक्स ऐसा ग्राफ ही मिलता है ओके सर थैंक यू हाँ Sir, I had a small doubt. somebody had it out yes हाँ Sir, Yes, I just wanted to know कि permanent damage to the material happens after the proportional limit or the ultimate tensile strength point. ओ परमानेंट डैमेज मतलब जो है अब उसके बियॉन्ड लोडिंग से अब अगर कि छोड़ोगे तो बॉडी वापस नहीं आता तो जैसे जैसे हमारे पास प्रोपोर्शनल लिमिट था ए फिर उसके बाद जो है इलास्टिक लिमिट बी था बी के बाद कोई सा भी पॉइंट लो हाँ बी के बाद एनी जनरल पॉइंट सी वहां से रिलीज करेंगे तो वहां से रिलीज करेंगे तो बॉडी जो है सेम अनलोडिंग कर्व फॉलो नहीं होगा वो कुछ ऐसा आ जाता है और कुछ स्ट्रेन रह जाता है आई गेस नीचे है ग्राफ कैन सम प्लीज आरफ उसको थोड़ा नीचे ले जाओ शो दैट ग्राफ वो कहाँ गया ऊपर है क्या सॉरी हाँ ऊपर है ऊपर होगा Sir, which one? वो जो ग्राफ है ना स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ वाला For the one we are drawn in class. 1 minute, sir. हाँ ये This वाला one? यस सो बी के बियॉन्ड कुछ भी लोडिंग करो दिस इज सी इज एनी जनरल पॉइंट बी के बियॉन्ड एनी पॉइंट पे लोड करो तो यहाँ से फिर अगर कोई सा भी लोडिंग है तो उसमें परमानेंट डैमेज हो जाएगा यस अंडरस्टूड Sir, between B to C, if we stretch, will the material contract or not? बी टू सी नहीं बी तो एक पॉइंट हो गया सी इज एनी जनरल पॉइंट Okay.
सी इज एनी जनरल पॉइंट है ना, तो अब बी के बियॉन्ड कोई सा भी पॉइंट करोगे तो यहाँ स्ट्रेच ही हो रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट क्यों? मतलब रिस्टोरिंग फोर्सेस प्रोपोर्शनल नहीं होंगे लेकिन होंगे, राइट? यस 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 यस, हाँ स्ट्रेस टू स्ट्रेस, ये स्ट्रेस तो वही है, रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया ही है ना, मटेरियल का रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया है। ओके, थैंक यू सर। So what is that permanent set like? I didn't get. ओ परमानेंट सेट मतलब परमानेंट डैमेज। परमानेंट डैमेज मतलब देखो, अगर कि मान लो यहाँ से इसको छोड़ दो, यहाँ तक ले आओ, तो यहाँ पे देखो स्ट्रेस जीरो है, लेकिन भाई देयर इज अ स्ट्रेन, तो स्ट्रेस जीरो देयर इज अ स्ट्रेन, मतलब कुछ परमानेंट एक्सटेंशन आ गया। Okay, so okay. हाँ हाँ हाँ। सर अभी स्टार्टिंग में किसी ने पूछा कि बियॉन्ड डी इवन इफ यू अप्लाई स्मॉलेस्ट स्ट्रेस वी गेट अ ग्रेटर स्ट्रेन, राइट? यस ओके ओके, करेक्ट, हाँ यस हाँ। अगर ये वाला हो गया तो हाँ गाइस, लेकिन इसमें भाई ये वाला आना चाहिए यार, इसका ग्राफ, हाउ डू दे मेक इट, यू नो ना, इसका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ, राइट गाइस? लैब में जो पॉइंट्स हम लेके बनाते हैं, तो ये वाला भूल गए क्या? देखो F इज इक्वल टू वाई ए बाई वाई ए, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। YXY. हाँ, अरे ये वाला देखो, ये वाला जो है, सी स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई टाइम्स स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या हो जाएगा? फोर्स बाय एरिया, फोर्स क्या है? लोड mg, और वाई एरिया क्या, क्रॉस सेक्शन क्या होगा? पाई डी स्क्वायर बाई 4, वाई स्ट्रेन को क्या लिखेंगे? x बाय एल, हाँ, और ये तो डायमीटर है ना, तो बेसिकली यू हैव दिस रीडिंग एंड आल्सो यू हैव दिस रीडिंग, ठीक है, तो ये निकाल लोगे आप, फिर ये ऐसा, तो स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ, हाँ, और उसका स्लोप ये हो जाता है। अगर मान लो कहीं पे इसमें जो है, देखो ये वाला यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यंग्स मॉडुलस की वैल्यू यहाँ से mg/l, देखो mg/l बाई कितना आ जाएगा? ये पाई डी स्क्वायर बाई 4, कितना आ जाएगा? x ना, into x. इंटू एक्स। फिर ये देखो यहाँ पर इक्वेशन कैसे बन रहा है, दिस यू मस्ट बी एबल टू मैनिपुलेट। अगर किसी ने मान लो m और x का ग्राफ दिया है, m एंड x का ग्राफ, तो m एंड x के ग्राफ में क्या आ जाएगा? इफ m, और मान लो किसी ने बोला कि भाई क्वेश्चन में दिया है दिस इज m, दिस इज x, तो m एंड x का ग्राफ विल आल्सो बी अ स्ट्रेट लाइन, एंड उसका स्लोप क्या होगा बताओ? पाई डी स्क्वायर बाई 4 into y by l. पाई डी स्क्वायर बाई 4 into y बाई gl ना, gl, yes. ये होगा। सो अगर m एंड x का ग्राफ दिया है तो उसका स्लोप ये आएगा। मतलब बेसिकली यू मस्ट रिमेम्बर दिस कंसेप्ट, और इसी से ही करना है, हाँ ठीक है। और इसमें जो है आगे फिर एंड में जो है लैब में आपको जो है ये वाला एक्सपेरिमेंट होगा, शायद 12th में है शायद, तो इसमें जो है दे विल आल्सो एरर्स का पढ़ाएंगे। तो एरर्स में देखो ये वाला याद रखना, ये कंसेप्ट याद रखना, mgl, भाई ये तो पाई कांस्टेंट है ना। अब इसमें गाइस आपको ये वाला आपने किया था, सपोज कोई क्वांटिटी है q इज इक्वल टू k टाइम्स x टू पावर a y टू पावर b z टू पावर c, तो डेल्टा q बाई q कितना आ जाता है? ये वाला a डेल्टा x बाई x प्लस b डेल्टा y बाई y प्लस c डेल्टा z बाई z, करेक्ट? Yes, sir. तो इसी से ही आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो, राइट? जैसे अगर कि मान लो यहाँ पर डेल्टा y बाई y पूछा है, तो अकॉर्डिंगली करके फिर निकाल लोगे ये वाला। Yes, sir. Yes, sir. ये वाला याद रखना। हाँ, Yes, sir. वैसे ये वाला विल डिस्कस इन द एरर्स के चैप्टर में, विल डिस्कस दिस वन। फिर आपको ये रिजल्ट याद रखना है, डिस्टेंस इक्वल टू y टाइम्स स्ट्रेन। यस, हाँ सर मेरे को समझ में नहीं, A और B के बीच में सर क्या हो रहा है सर? वो a एंड b के बीच में क्या हो रहा है? क्योंकि डिप है ना सर ग्राफ में। नहीं, a इज द प्रोपोर्शनल लिमिट। अब प्रोपोर्शनल लिमिट मतलब ये पावर 1 है, इसके बियॉन्ड a से b तक में पावर जो है 1 नहीं हो गया, 1 चेंज हो गया भाई। मान लो स्ट्रेस इक्वल टू y टाइम्स स्ट्रेन स्क्वायर हो गया, स्ट्रेन क्यूब हो गया, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, चलो ठीक है। पॉइंट ए के बाद यंग्स मॉड्यूलस चेंजिंग रहेगा ना, वेरिंग रहेगा ना? इसके बाद हाँ, मतलब ये तो हाँ स्ट्रेस मतलब वो स्लोप चेंज हो रहा है इसके ना, वेरिंग है। And sir, can you repeat the elastic limit also again?
like what does it actually mean? तो मतलब इसके बियॉन्ड जो है, मतलब यहाँ तक ले आए, ठीक है, यहाँ तक बी तक ले आए, उसको अनलोड करोगे तो वही रास्ते में आएगा, जैसा एक्सटेंशन हुआ है वैसे ही वापस अनलोड करोगे तो वापस यही सीक्वेंस। Okay sir, got it. हाँ ओके अरब, हाँ यू कैन क्लोज दिस स्क्रीन शेयरिंग प्लीज। तो गाइस अपन को जो है, हाँ और तो थ्योरी में किसी को डाउट था क्या? आई गेस वी डिड सम टफ सम्स, तो इसलिए शायद कुछ स्टूडेंट्स को थ्योरी में डाउट था। यस हाँ प्लीज टेल। सम्स में किसी को थ्योरी में डाउट था, मतलब आई मीन क्वेश्चंस में स्ट्रेस वगैरह वो लेना कैसे लेते हैं, एवरेज फोर्स, वो सब, किसी को डाउट था क्या वाला? हाँ सर। यस हाँ Sir, in that last class you had done that sum now, that one uniform rod was there, and at both the ends were applying different forces. Okay. So how did you get that average force thing? तो एवरेज वाला याद है, हमने उसके लिए डिफरेंट सारे क्वेश्चंस किए थे। जैसे अगर कि मान लो ये ऐसा है, से अगर मान लो ये एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और पहले तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था क्वेश्चन को, हमने बोला ये ऐसा है, इफ दिस इज इन इक्विलिब्रियम, इसमें एक्सटेंशन निकालना है। तो इसमें जो है, इसमें एक्सटेंशन कैसे निकालोगे भाई, ये इक्विलिब्रियम में तो ये वाला एंड भी ऐसे लगा रहा होगा फोर्स, दिस एंड आल्सो विल बी अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन, यहाँ से किया। फिर इसमें हमने बोला इसको कैलकुलेट करने के लिए, सी द फोर्स एट ईच सेक्शन इज एफ। हाँ यहाँ पे इक्विलिब्रियम में तो टेंशन एट ईच सेक्शन इज एफ, दैट इज द रिस्पांसिबल फोर्स फॉर कॉजिंग द एक्सटेंशन। तो आप जो है उसको ऐसे डायरेक्टली फॉर्मूले से कर लो या इंटीग्रेट कर लो, आप ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स बना लो। याद है हमने छोटे छोटे एलिमेंट्स बना लिए, और each element is of length dx and every dx will have extension dl, so total extension निकालना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या हो जाएगा, f into length by ay, f force at each section is f, length of element is dx divided by ay। तो इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया था, तो f was constant each section का, तो fl by मतलब डेल्टा l, सॉरी दिस इज डेल्टा l, ये क्या आ गया था, FL by AY। This one understood? Yes sir, understood. हाँ फिर हमने इसी को ही हमने क्या किया, फिर बोला ये वाला एंड छोड़ दिया खुला। नाउ इसको किया तो ये अब इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता, मूव करेगा तो एक्सेलरेशन होगा। तो न्यूटन्स लॉ के कंसेप्ट से हमने टेंशन अलग अलग पॉइंट्स पे निकाल लिया, राइट। सो इससे हमारा डेटा ये आ गया था। तो इसको हमने किस फॉर्म में लिखा था, इसको लिखा था अगर ये एफ नॉट है, ये भी एफ नॉट है, तो हमने ऐसा लिख लिया था, लीनियर वेरिएशन है। अदरवाइज इंटीग्रेशन से करना पड़ जाएगा, इंटीग्रेशन से भी सेम रिजल्ट वही आएगा। तो यहाँ पे एंड क्या है, जीरो फोर्स। तो इसमें भी याद है इंटीग्रेशन हमने किया था तो कितना आ गया था, एफ नॉट जीरो प्लस, सॉरी ये क्या कर रहा हूँ, हाँ ये वाली वैल्यू कितनी आई थी, एफ एल बाई ए वाई ना, एवरेज कितना आ जाता था इसका, फिर 0 प्लस एफ बाई 2 इंटू एल बाई ए वाई। इंटीग्रेट करोगे तो भी ये आएगा। इवन इंटीग्रेशन हमने ऐसे वाले के लिए किया था, रिमेंबर एक रॉड ऐसा रखा हुआ है, यस सर गॉट इट, फ्री एंड पे जीरो, यहाँ पर फोर्स mg, और इसके लिए एक्सटेंशन कितना निकाला था, mgl by 2ay। यस mg प्लस 0 by 2l by ay, अदरवाइज इंटीग्रेशन में लग जाएगा। Understood this one? Yes sir. So you taught this in the last class, right? ये वाला तो क्या था, हाँ ये लास्ट क्लास में नहीं था, शायद उसके पहले ही था। No sir, the derivation you covered in the last class, na? Last to last. Yeah, Last to last. Five. चलो, और गाइस फिर उसके बाद जो है हाँ दो सम्स और करते हैं, फिर उसके बाद जो है वाला करते हैं। हाँ एक वो टफ इलस्ट्रेशन वाला था ना स्टूडेंट्स, उसमें हमें सम्स करना है। एक तो पहला ये करेंगे शायद 1.294। सर व्हिच वन? एक मैंने पीडीएफ शेयर किया था, दिस वन इलास्टिसिटी 1 करके।
दिस टू टर्म, Sagacity 1 tough. यस यस, हाँ हाँ हाँ, उसको कोई ग्राफ प्लीज ग्रुप में Sir, I पोस्ट, sent it on both the groups. जय उसको ग्रुप में हाँ प्लीज पोस्ट करो. So 1.294 वो वाला क्वेश्चन ना. sir, we have to start from 1.294. हाँ, अभी 1.294 पहले करते हैं, दो सम्स करेंगे, 1.294, 1.291. Rest I will give as homework. So guys, who will explain 1.294? Question explain करना है मुझे. सर ऐसा क्वेश्चन पिछले टाइम के होमवर्क में था. अपन ने किया है क्या? Question 11. We have done. We have not done. It was given. Sir, in- HCV में होगा. Okay. Okay. Can anybody explain the question? What they have given? Sir, a steel wire of diameter d 1 millimeter is stretched horizontally between two clamps located at a distance 2 meters from each other. हाँ. So let me draw a steel wire. Guys, this is steel wire of length 2 meters. Okay. So if this length is 2 meters, so suppose 2L ले लेते हैं. 2L is 2, L is 1, L हाँ is between two supports. Okay. A weight of mass 0.25 kg is suspended from the middle point of the wire. Okay, mass is very small. Guys, ऐसे तो स्टील वायर है और मास काफी छोटा है. डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. ये ऐसा हो गया, यहाँ पे मास आपने सस्पेंड किया तो ये ऐसा नीचे आ जाएगा. ओके, ये मास ऐसा ये नीचे आ गया. सो दिस हैज कम डाउन by some distance, say x, whatever, x नीचे आ गया. वही find out कर. And guys, this x will be very small, क्योंकि देखो जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेंगे तो ये इक्विलिब्रियम में रह नहीं सकता, नीचे आएगा. सो अगर ये इक्विलिब्रियम में रहेगा बिकॉज तो न्यूटन्स लॉ सेटिस्फाई नहीं होगा. गाइस सी, टेंशन इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वर्टिकल वाला बैलेंस नहीं होगा. सो इट हैज टू बी इन दिस वे. तो ये वाला मास यहाँ पे सस्पेंड है. तो गाइस, और एक्चुअली क्वेश्चन में जो है इन्होंने ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको बुक के पीछे टेबल्स में से सभी वैल्यूज लेनी है. तो ठीक है, हम वैल्यू वेरिएबल्स के टर्म्स में काम करते हैं. यंग्स मॉडुलस इज से ys. यार उन लोगों ने l दिया है, l को 2 दिया है कि Sir, L they have given. Sir, length is Length of the entire steel wire is. Yes, sir. Sorry. ठीक है, length is 2. Sir, you are correct. Sir, you were correct. Sir, correct लिखा था. Length is 2. हाँ, तो total length is 2. Okay. L is 2. So this is L by 2, L by 2. हाँ. And guys, ये काफी छोटा होगा. हाँ, ये ला छोटा होगा काफी. So values in terms of variables अपन कैलकुलेट करेंगे. Yes, concepts बताते जाओ, कौन कौन से concept यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे और कैसे प्रोसीड करना है तक पढ़ो. Can you give 2-3 minutes? Yes, हाँ. सर Yes, हाँ. मेरे प्रीवियस पेज पे डाउट था सर. इसके प्रीवियस पेज पे डाउट है. ओके, हाँ. यस हाँ. सर ये यहाँ पे आपने नीचे सर लेफ्ट साइड में सर f0 प्लस f0/2 आया सर, वो मेरे को समझा नहीं सर कैसे मिला. ना देखो, अब ये बताओ कि हमारा आंसर तो इसमें कितना आ गया था, f0 L by AY आया था. हाँ यस सर. हाँ, इसको कैसे हमने इंटरप्रेट किया, हमने बोला भाई ठीक है, ये वाला एंड जो है, अगर दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, दिस एंड मस्ट बी अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस वायर इन अपोजिट डायरेक्शन. हाँ यस सर. सो
F0 इधर, F0 इधर, ठीक है। अगर इलास्टिक बॉडी को एक्सटेंड करना है तो ऑब्वियसली भाई उसको खींचना पड़ेगा। द टू एंड्स मस्ट बी सब्जेक्टेड, जैसे स्प्रिंग है, मासलेस स्प्रिंग। अच्छा, आपने पढ़ा था मासलेस स्प्रिंग जो न्यूटन्स लॉ में, द टू एंड्स ऑफ द स्प्रिंग मस्ट बी सब्जेक्टेड टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इन अपोजिट डायरेक्शन। okay, so there is increase of length from both the sides, but that side is clamped, तो कुछ length में increase, लेकिन force है। फोर्स, हाँ, तो हम बोलेंगे फोर्स यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है, तो F0 को क्या लिख सकते हैं, दिस प्लस दिस बाई 2। ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ, फिर आंसर्स को मैच कराने के लिए हमने ऐसा बताया। ओके, थैंक यू सर। So the rod is massless, right? किस केस, the previous problem 1.294. 1.294, yes, ये वाला वायर ना, Yes, like wire only. yes ये वाला वायर को, हाँ ये वाला वायर का Sir, माप, is it x is equal to mg under root mg by 4y into l? एक मिनट, इसमें जय पहले कंसेप्ट बताओ कैसे निकाला, इसमें क्या कंसेप्ट लगाया पहले। न्यूटन्स लॉ से t पहले 2t sin थीटा इज इक्वल टू mg कर देंगे। 1 मिनट, हाँ, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ठीक है, श्रेयांश 2t sin थीटा, ओके, t इधर, t इस साइड, so 2t sin थीटा is mg। और Can we write sin theta directly? Theta as theta will be very small. okay. Small angle guys, sin theta is equal to theta and tan theta is also approximately equal to theta. So okay, sin theta को we can write as tan theta small angles के लिए। तो हाँ, tan theta ये आ गया, फिर क्या लिखोगे? Tan theta will be x by l by 2. x by l by 2। So ये तो हो गया आपका 4t x by l is equal to mg। चलो एक कंसेप्ट तो यहाँ पे हो गया, हाँ, सेकंड कंसेप्ट, सर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन कर देंगे और स्ट्रेन हमें पता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल। वंश, हाँ हाँ प्लीज लगे। सर यंग्स मॉड्यूलस को स्ट्रेस बाय स्ट्रेन से इक्वेट कर देंगे और स्ट्रेन हमें पता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ओके ठीक है, नाउ वंश इज यूजिंग यंग्स मॉडुलस कांसेप्ट, ठीक है। यंग्स मॉडुलस के लिए क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू y टाइम्स स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल टू y टाइम्स स्ट्रेन। स्ट्रेस इज अ फोर्स व्हिच इज डेवलप्ड इनसाइड द वायर। क्या होगा वंश इसमें, स्ट्रेस कौन सा फोर्स होगा, which force is causing the area? tension। yes sir। एरिया हो जाएगा पाई d square by 4 diameter of strain। how is strain defined? so change in length upon original length। तो change in length by original length, okay। अब जो है जयशंकर, change in length क्या होगा? सर हमने लाइक 2 root l square plus x square minus 2। Sir, we will find out using Pythagoras theorem। yes by change in length मतलब change, how is change defined? change is final। भाई ये वाला फाइनल है पूरा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक फाइनल, और यहाँ से यहाँ तक इस इनिशियल। सो लेट अस फाइंड ये वाला, भाई ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी पाइथागोरस से, l square by 4 plus x square। this also will be l square by 4 plus x square। so to find change in length, let us go to the next page। चलो ठीक है, हाँ, so delta l change in length मतलब final minus initial। guys final length क्या होगा, 2 times hypotenuse root of l square plus l square by 4 plus x। root of l square by 4 plus x square minus initial is l। अब ये वाला है ना, if you are taking the whole wire then we should take the force as 2t, right?
नहीं अरे यस सर, 2T होना चाहिए। वायर में टेंशन तो T रहेगा ना। अरे वायर में टेंशन थ्रू आउट द मटेरियल सेम रहेगा ना T। बट ईच Sir, you सेगमेंट पे take it टेंशन as एक्ट कर रहा है ना। sir, you take it as T0. ये जैसे आपने किया था ना, याद है ये वाला सम? जैसे सपोज ये सर्कुलर वायर है ना, एक एलिमेंट T, इस साइड T और इस साइड T, याद है? 2T sin थीटा बाय 2। ओह यस, ओके ओके गॉट। थ्रू आउट टेंशन सेम रहेगा ना, राइट गाइस? ये वाला यस सर। ओके। मेरे को नहीं समझा सर ये क्या किया आपने। अरे ये किया ना आपने, अरे सर्कुलर मोशन में सम था, याद है? सर्कुलर मोशन में सम था कि फाइंड द टेंशन इन द वायर निकालना है। तो पूरे वायर में एक टेंशन, तो छोटा सा एलिमेंट लिया था सर ने, छोटा सा एलिमेंट जो लिया था, तो काफी फ्रीक्वेंटली यूज हुआ होगा। देखो सर ने क्या किया था, इसको छोटा सा लिया, फिर छोटा सा एलिमेंट, इसको T लिखा ना, इस साइड T पूरा, और इसको T, याद है? ये वाला एंगल D थीटा, फिर नेट इनवर्ड आ गया था ना 2T sin थीटा बाय 2। अच्छा, वही तो लिया है ना TNT। ओके ओके। तो वैसे ही हमने यहाँ पे किया कि जो है इस साइड T और इस साइड भी T, ये छोटे से पार्ट पे लिख रहे हैं, तो वर्टिकल वाला क्या हो जाएगा? T sin थीटा एंड T sin थीटा। ये अंडरस्टूड? चलो ठीक है गाइस, इसके बाद इसको डील करना है L²/4 + x²। इसको इसमें गाइस L²/4 कॉमन लेते हैं अगर, तो ये कितना बन जाएगा? 1 + x²/, ये 4x²/L²। ओके। अब जो है आई थिंक बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते cos x बहुत छोटा है। करेक्ट हाँ, टू द 1/2, ये स्क्वायर रूट है यहाँ पर, तो स्क्वायर रूट को मैंने लिख लिया 1/2। पहले तो स्क्वायर रूट वाले से इसको बाहर निकालो, L/2, 4x²/L², ये 1/2, L/2, 1 + 2x²/L²। चलो यहाँ तक तो आ गया। सो ये कितना हो जाएगा सिंप्लीफाई करेंगे तो? ये वाला L/2 प्लस x²/L ना गाइस, ये वाला x²/L। यस सर। ओके, नाउ यहाँ पे पुटअप करते हैं। सो दिस इज L/2 प्लस x²/L माइनस L। सो कितना आ जाएगा ये वाला डेल्टा L? 2x²/L। हाँ, ये तो L/2 कैंसिल हो गया, ठीक है। सो कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 2x²/L। गाइस यहाँ तक किसी को डाउट? हर्षल, Harshal, any doubt here? Harshal is not there. Manvi, understood this one? Hello, sir. Yes, Nishit. हाँ. Sir, can you highlight the binomial approximation part once? Okay, हाँ. So देखो यहाँ पर, यहाँ तक तो आ गया हमारा, हाँ. फिर रूट लेना है. इस रूट में से L²/4 का L/2 will come out. Now this whole thing will be in the root here. ये वाला part. This is 1, x is small, तो ये x² और छोटा हो जाएगा. 1 plus small quantity raised to power n. 1 plus small quantity raised to power n. तो क्या हो जाएगा? 1 plus nx. n आगे आ जाएगा. So this becomes, एक मिनट था, L/2 1 plus 4x²/2 L². Got it, sir. Thank you, sir. So इससे आ जाएगा 1 plus 2x²/L².
यहाँ तक तो आ गया। सर यस हाँ सर वो 2t sin d थीटा बाय 2 बोले, वो मेरे को नहीं समझ सर, वो तभी भी 2t तो आ ही रहा है। ना 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 ना। उसमें हमने क्या लिखा था, वो तो सर ने डिराइव किया था ना। वो फिर वाला उस डेरिवेशन में चले जाओगे तो फिर ये होगा। सर ने कैसे निकाला था, t sin 90 माइनस थीटा t sin, ऐसे लिखा था ना सर ने। sin 90 माइनस d थीटा बाय 2 sin 90 उसको ऐड किया था तो फिर आया था ना। ठीक है फोर्थ में सर। लिखेंगे ना t sin, ऐसे लिखेंगे ना t cos 90 माइनस मतलब t sin d थीटा बाय 2 प्लस t sin d थीटा बाय 2, ऐसे लेके करेंगे ना वहां पर। तो ये बन गया था 2t sin d थीटा बाय 2, राइट। इस साइड का t लेंगे ना यार, और ये वाला t लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। देखो ऐड करेंगे तो जाके ऐसे बनेगा। हाँ तो वैसे ही हमने देखो यहाँ पर ऐड किया है। सी हाँ t का ये वाला कॉम्पोनेंट t cos 90 मतलब t sin थीटा, t sin थीटा दोनों को ऐड करेंगे हाँ 2t sin थीटा। हाँ यस अच्छा। अंडरस्टूड। ओहो सर, तो फिर यहाँ पे आपने सिर्फ t क्यों लिया सर? नीचे स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई स्ट्रेन में वो t वहाँ पे। हाँ स्ट्रेस क्या है, जो स्ट्रेस किस स्ट्रेस इन द वायर मतलब रीस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया इन द वायर। अच्छा तो ओवरऑल t रहेगा, यस सर। सब में t रहेगा। हाँ ओके, गॉट इट। ठीक है थैंक यू। चलो इसके बाद, हाँ इसके बाद गाइस अभी फिर से कैसे करेंगे, t की खाली वैल्यू, एक्सप्रेशन लाके छोड़ना है ना नहीं t की वैल्यू रखनी है ना। अरे t की वैल्यू कितनी रखोगे सर? t की वैल्यू mgl/4x। mgl/4x यहाँ से आ रहा है, ओके। एक मिनट, t की वैल्यू आ रही है mgl/4x, ये t की वैल्यू को यहाँ पुट अप करना है। यस सर। mgl/4x और नीचे है पाई d स्क्वायर बाई 4 y। व्हाट इज द चेंज इन लेंथ गाइस? 2x स्क्वायर बाय एल। 2x स्क्वायर बाय एल। तो चेंज इन लेंथ को लिखा डेल्टा एल की जगह 2x स्क्वायर बाय एल और नीचे एल है। यस सर। अब इससे मुझे x की वैल्यू निकालो, x निकालना है आपको आंसर। सर अंडर क्यूब रूट mgl क्यूब डिवाइडेड बाय 2 पाई d स्क्वायर y। एक मिनट, क्यूब रूट, यस सर। क्यूब रूट में अंदर क्या क्या है, mgl क्यूब डिवाइडेड बाय 2y pi d square। 2 पाई d स्क्वायर y। 2 पाई d स्क्वायर y। यस सर। यस सर, यही आया मेरे को। ये स्टूडेंट एवरीबॉडी अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। सर इसको एनर्जी सर कंजर्वेशन इसके से बाद कर कौन सा सकते हैं क्वेश्चन है? नहीं इट इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जयशंकर इसके बाद यू आर आस्किंग क्या, कौन सा क्वेश्चन करना है? नो क्या क्या somebody was asking क्या था इसको? यस आई वाज आस्किंग इसके बाद कौन सा करना है? ओके 1 मिनट, इसके बाद ना ये जो है 1.291 का बी पार्ट करना है। एक मिनट, 1.291 का बी पार्ट, पहले बी पार्ट करना है एंड इट इज गोइंग टू बी अ टफ क्वेश्चन। ठीक है गाइस, आपको इसके बाद अभी जो है 1.291 का बी पार्ट, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। यस सर क्या somebody was asking? हाँ प्लीज टेल। कैन यू शो द आंसर? आंसर ओके, ओके सर। ये वाला आंसर आ रहा है। सर रेस टू हाफ होगा। कुछ रॉन्ग है क्या इसमें? नहीं सर करेक्ट। नहीं सर करेक्ट है। सर इधर LHS में जो लास्ट इक्वेशन लिखा ना आपने mgl/4 पाई, इधर x लिखा ना एक, कुछ रॉन्ग है यहाँ पर। एक में mgl/4x। सर और वो 4 के बाद वो x है या मल्टीप्लिकेशन का साइन? 4x। ओह सॉरी आई थॉट इट वाज द मल्टीप्लिकेशन। 4x यस, ये t की जगह लिखा था।
एक और सम गाइस पे थोड़ा इजी कर लेंगे आई गेस, थोड़ा सभी सम स्टफ कर दिए हम। सम्स इसके बाद इजी कर लेंगे हम। Sir, it's okay. Sir, which question do we have to do next? नेक्स्ट इज ये वाला 1.291 का बी पार्ट। Okay. गाइस ये वाला क्वेश्चन से मतलब डोंट वरी, ये वाला जो है व्हाई आई एम डूइंग दिस, इसको जो है आई विल यूज दिस इन एज दिस डेरिवेशन इन द नेक्स्ट टॉपिक। सरफेस टेंशन में यूज करूंगा, ठीक है, सरफेस टेंशन में विल यूज, आल्सो मॉडर्न फिजिक्स में भी आई विल यूज इट। तो ठीक है, अभी कर लो, दिस विल बी हेल्पफुल टू अस। Sir, will we require the value of breaking stress in this? यस यस यस, हाँ गाइस, इसमें जो है ब्रेकिंग स्ट्रेस उन लोगों ने ठीक है मटेरियल का नाम दे दिया है, ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेस सिग्मा भी लेना है हाँ? So we calculate the answer in terms of variables only. यस, वेरिएबल्स के टर्म्स में करते हैं गाइस। हाँ, लेट अस ट्राई टू मैच इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स। So can you just once more tell what was breaking stress? I am not able to recall actually. ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब वो वाला स्ट्रेस, फोर्स बाय एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया, जिस पे जो है मटेरियल टूट जाता है। हाँ, Harish, how will you approach this one? Sir, I think we have to use calculus. You have to take an element on the. Okay. Yeah. Sir, just a small doubt. Yes, Krishna. So, sir, in the previous sum, if we did by your initial method, like taking the whole length of the wire as 12, we should get the same answer, right? Length of the wire, मतलब लाइक सर आपने पहले पूरे वायर का लेंथ 12 दिया था और फिर उससे L1 आया था, फिर आपने बाद में चेंज करा था, पर अगर पूरे लेंथ को 12 लेते तो भी आंसर सेम ही आना चाहिए ना। नहीं, उन लोगों ने L जो दिया है, मैंने उस वेरिएबल के टर्म्स में मैच करने की कोशिश की। फाइनल आंसर मैं ला ही नहीं रहा हूँ, मतलब वेरिएबल के टर्म्स में निकाला है मैंने। तो न्यूमरेटर में into 8 आ जाएगा, अगर 12 ही होगा तो आई गेस। यस सर। ओके। हाँ सर, क्योंकि मेरा न्यूमरेटर डिफरेंट आ रहा था, उससे मैं पूछ रहा था। ओके हाँ, नहीं वेरिएबल्स के टर्म्स में लेके करो ना, इससे फिर कैलकुलेशन पूरा करना पड़ जाएगा, इसलिए मैंने L को रखा है, तो मैंने इसलिए चेंज कर दिया है। सर अगर 12 लेंगे तो 4 mg L³ by pi d square y आएगा। हाँ यस सर, मेरे को वही आ रहा था इसलिए मैं पूछ रहा। यस सर। ओके, ये वाला फिर डबल हो जाएगा।
Sir, can you please solve this one? Yes, sir. So guys, इसका दो तीन मिनट रुक सकते हो क्या? Yes, yes, yes. Yes, sir, please. Just 2 minutes. देवेश, HCV का क्या स्टेटस है? सर आज चालू करूंगा. आज? सर सेम हियर. काफी दिन पहले दिया था. सर बैकलॉग्स भी हैं सर, उनको कवर कर रहे हैं. ओके ओके. यस सर, थोड़ा चैप्टर सॉल्व करना. सर जो मतलब जो कुछ कुछ एक्सरसाइजेस छूट जाते हैं. ओके ओके. टेस्ट रहते हैं तो सर. तो मैंने सर फ्लूइड मैकेनिक्स का HCV नहीं किया था, तो करना चाहिए कि अभी रहने ही दो? नहीं करो ना उसमें. वैसे हमने काफी क्वेश्चंस उसमें से उस टाइप के क्लास इलस्ट्रेशंस में टफ क्वेश्चंस हो गए थे, तो बाकी मैंने देखे तो इजी लग रहे थे, वो किया नहीं. हाँ सर, कुछ खाली 15 प्रॉब्लम्स या 10 प्रॉब्लम्स ही है जो नहीं किए हुए HCV के हमारे क्लास में. ओके ओके ओके. एक बार लेकिन कर लो ना आप तो. हाँ अभी ज्यादा, क्योंकि अब 11 तक ठीक है रिलैक्सेशन अलाउड है, लेकिन गाइस 12th में आप लोग को ज्यादा करना है. ओके. सर एक और चीज पूछनी थी सर. प्रीवियस ईयर जेई जो क्वेश्चंस होते हैं सर, जेई एडवांस के, उनको अभी करना चाहिए या फिर कलेक्टिवली एंड में करना चाहिए? आई सजेस्ट एंड में. ठीक है, मतलब जो एक्चुअली अपने बुकलेट दे तो ठीक है, पुराने वाले है ना, तो थोड़े रीसेंट वाले जो हैं आप एंड में करो फुल. उसके बाद बुकलेट में ओनली 2015 तक है आई गेस. हाँ हाँ, तो लास्ट एटलीस्ट आपके पास 6-7 इयर्स का रह जाएगा, उसको बाद में करना ठीक रहेगा. सर आप डाउट लेक्चर्स में HCV का ऑब्जेक्टिव भी ले सकते हो? यस ओके, नो प्रॉब्लम. डाउट के लिए हाँ इस वीक लगा नहीं है ना. हाँ उसको गाइस रिक्वेस्ट भी करना. हाँ डाउट लेक्चर्स के लिए लगा नहीं है नेक्स्ट वीक के लिए. हाँ So can you discuss this one? ओके. यस सर. सो ओके गाइस, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, सी जैसे ये वाला से दिस इज आवर वाटरमेलन. ठीक है, दिस इज परफेक्टली जो शेप वाटरमेलन है, और जो है ये वाला ऊपर वाला जो ग्रीन पोर्शन अंदर जो है द फ्लूइड या गैस जो है, रेड पोर्शन इज द गैस. हाँ, और किसी ये अंदर काफी गैस काफी ज्यादा प्रेशर में आ गया, तो ये जो है बर्स्ट होने वाला है. ठीक है, तो किसी एक हाफ का, लेट अस ड्रॉ द FBD ऑफ एनी हाफ पार्ट. ठीक है, हाफ पार्ट जैसे से एनी हाफ से लेफ्ट हाफ का ड्रॉ करते हैं. सो गाइस लेफ्ट हाफ का फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या फोर्सेस आएगा ये बताओ. You are drawing side view, right? यस, लाइक ये जैसे हमने, जैसे यही वाला है वाटरमेलन, इसको हमने यहाँ पे कट कर दिया. इज दिस ओके? सी. Oh yes sir. और इसका जो है हम ड्रॉ कर रहे हैं. सो गाइस ये बताओ कि इसका हाउ विल यू FBD में क्या क्या फोर्सेस दिखाओगे? Pressure times area outwards, F reaction inwards. ओके. तो जो है इस ठीक है, मैं जो है FBD किसका ड्रॉ कर रहा हूँ? FBD ऑफ आई एम ड्रॉइंग FBD ऑफ स्किन ऑफ वाटरमेलन. FBD ऑफ द स्किन ऑफ वाटरमेलन, उसका FBD, उस पे लगने वाले फोर्सेस. सो गाइस यहाँ पर ठीक है, इसके अंदर गैस है, गैस का फोर्स कैसा आएगा? Pressure into area. किधर डायरेक्शन किधर होगा? रेडियल. डायरेक्शन रेडियल, नॉर्मल. हाँ रेडियल आउटवर्ड्स. ठीक है भाई, ये वाला नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल हो गया. DF की वैल्यू क्या होगी? DF इज प्रेशर इनटू एरिया, P0 इनटू एरिया. तो नेट फोर्स निकालना है. नेट फोर्स निकालने के लिए कैन वी सम इट अप लाइक दिस? Won't it be P0 into dA? यस सर, क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है ना. P0 into dA, सॉरी. हाँ P0 into dA, यस. सो गाइस मैं F निकालने के लिए इंटीग्रल DF, और इंटीग्रल DF को लिखा P0 into dA, और P0 अंदर का प्रेशर है भाई. हाँ P0 इज अंदर का प्रेशर, और इंटीग्रल DA. सो और DA की वैल्यू, DA मतलब ऐसे छोटे छोटे एरिया का स्ट्रिप्स का एरिया,
कितना हो जाता है आधे स्फीयर के लिए कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर का आधा गाइस इज दिस सर करेक्ट 4 का आधा ना हाँ पूरे स्फीयर के लिए लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ आई एम ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्किन ऑफ हाफ watermelon से half okay sir this is the half watermelon FBD of the skin of half watermelon so half watermelon का area P naught into 2 pi r square is this correct Yes sir. Yes, sir. guys Sir, but in the question it is not given where the pressure is originating from. oh नहीं actually जो है जैसे अगर इसमें जो है पहली बात तो आई एम नॉट सेइंग व्हाट आई हैव रिटन इज करेक्ट आई एम आस्किंग यू सेकंड इनसाइड में जो है गैस उसका प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर प्रेशर पे वो बर्स्ट हो जाएगा वो वाला प्रेशर ले रहे हैं Sir, a similar question to this, like if the location of the pressure is not given, so like do we have to assume it anywhere or what? नहीं लोकेशन ऑफ प्रेशर क्या जैसे ये खाली बैलून है बैलून के अंदर एयर है और एयर किधर पुश करेगा उसको बाहर की तरफ Obviously. तो अगर बहुत प्रेशर ज्यादा हो गया तो फूट जाएगा राइट Yes. Sir, I'm not able to understand why we are assuming gas pressure. तो उसमें क्वेश्चन में गिवन है ना दिया है कि व्हाट इंटरनल प्रेशर in the absence of external pressure can be sustained by a spherical glass spherical flask what internal pressure अंदर में कितना प्रेशर होगा in absence of external pressure can be sustained by a B part glass spherical flask तो सर हम अज्यूम कर रहे हैं कि इंटरनल प्रेशर होगा तो गैस ही प्रोवाइड कर रहा हो yes हाँ अंदर जो है कोई गैस होगा कोई फ्लूइड होगा which is providing the pressure yes सर आप All ये right, Shobha. dA equal to 2 pi r square वाला इंटीग्रल वापस समझा सकते हो no हाँ अब नहीं the question was नहीं सर समझ गया I'm सॉरी not सर saying I'm not saying what Sir, I have written is समझ गया। correct हाँ I'm asking you is this correct is this I correct don't think it will be correct cause sir एक ही डायरेक्शन में तो प्रेशर आ नहीं रहा क्योंकि सर एक ही साइड ले रहे हैं ना तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में तो वी कांट डायरेक्टली इंटीग्रेट आई थिंक very good Shriyansh this is wrong why भाई force is a vector quantity देखो यहाँ पे एलिमेंट पे फोर्स इधर लग रहा है ठीक है ये थीटा एंगल पे वही थीटा एंगल पे एलिमेंट पे फोर्स यहाँ पे देखोगे वो ऐसे लगेगा डीएफ हर जगह फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग है तो हाउ कैन यू इंटीग्रेट दिस इज रॉन्ग सर मतलब सर, हमने यहाँ सिर्फ integral- एक स्लाइस का पूरा फोर्स निकाला ना हाँ क्या किया हमने पहले तो पकड़ा आधा वाटरमेलन उसका स्किन पकड़ा उसके स्किन में एक छोटा सा एलिमेंट लिया जैसे फुटबॉल है फुटबॉल में देखा है ना आपने कई सारे छोटे छोटे स्ट्रिप्स जैसे होते हैं ना छोटे छोटे यस सर कई कई जगह स्ट्रिप्ड फुटबॉल जैसे नहीं आता छोटे छोटे पार्ट्स ऐसे रहते हैं ना तो यस सर उस स्ट्रिप्ड फुटबॉल पर वो एक एलिमेंट हो गया उस एलिमेंट पर अंदर का प्रेशर अंदर एक मान लो गैस है वो गैस इस पे इधर फोर्स लगा रहा है ठीक है तो वो डीएफ हो गया और इस एलिमेंट पे ये छोटा सा एलिमेंट इधर इस पे फोर्स इधर वैसे यहाँ पे एलिमेंट उस पे फोर्स इधर इज दिस करेक्ट सर आई थिंक वी हैव टू इंटीग्रेट डीएफ cos थीटा sin थीटा अलग अलग से करना पड़ेगा गुड गुड df sin theta will get cancelled, right? Yes, Yes, sir. df sin theta will get Symmetry. cancelled. yes yes okay good Only cos theta component. Sir, if we take 1/4 sphere, then we can directly write 2 df cos. हाँ मतलब एक सबके एक कंपोनेंट्स को ऐड करते चले जाओ बस और क्या है ना Yes, sir. चलो ठीक है so this is wrong now if this angle is theta ये भी एंगल थीटा तो ये हो जाएगा df cos थीटा df sin थीटा कैंसिल हो जाएगा ओके df cos थीटा एंड df sin थीटा तो ये कैंसिल होने वाला है गाइस तो हमें जो है अगर फोर्स निकालना है
वाटरमेलन के स्किन में ड्यू टू द गैस इनसाइड, ड्यू टू द फ्लूइड इनसाइड, the net force by the fluid on the skin of watermelon will be in x direction. So fx is integration of dfx. Integration of dfx means df cos theta. df तो क्या है? p नॉट, अंदर का प्रेशर p नॉट है मान लो, p नॉट da cos theta. p नॉट बाहर आ गया है, so p नॉट comes out of the integration. अब da cos theta बचा है, तो हमें सबके डीए कॉस थीटा का सम करना है। गाइस यहाँ तक किसको डाउट है? थोड़ा सा टफ है लेकिन प्लीज। थीटा क्यों लिया आपने सर? डीएफ कॉस थीटा ठीक था ना सर? होने से कुछ रॉन्ग? व्हिच वन नील यू आर सेइंग? दिस वन आई हैव टू डीए कॉस थीटा लेने की क्या जरूरत है? डीएफ कॉस थीटा सर ठीक था ना? मेरे को समझा नहीं। सब्स्टिट्यूट ही है। कॉस थीटा भी एक वेरिएबल है। अरे ना ना ना, देखो ना भाई, df into cos थीटा को वैसे ही रखा, df की जगह p नॉट da डाला ना, सब्स्टिट्यूट किया। अच्छा ओके सर अब p नॉट सर आई डिडंट गेट व्हाई डिड वी टेक अ हाफ स्फीयर? पूरा लेते थे तो फिर तो fx भी कैंसिल हो जाएगा। हाँ नहीं एक्चुअली जो है, हाँ पूरा करेंगे तो f भी कैंसिल हो जाएगा, सभी फोर्सेस इंटरनल हो जाएंगे, हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, राइट? तो अगर मान लो इंटरनल फोर्सेस को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? एक सेक्शन कट करना पड़ेगा आपको। तो मैंने क्या किया, हाफ पार्ट को कट कर लिया और हाफ पार्ट का देख रहा हूँ। सर बट अगर इंटरनल फोर्सेस कैंसिल आउट हो जा रहे हैं तो फिर उनके वजह से कोई एक्सटेंशन बनेगा क्या? अरे भाई ये बताओ कि जैसे ये है, सपोज ये आपके पास ये ऑब्जेक्ट है साहब, तो सो दैट मींस f और f इसमें हाँ हाँ, इसमें बेसिकली दोनों साइड पे इंक्रीज हो जाएगा ना, फोर्स इंक्रीज होगा भाई। हाँ, और कैसे निकालते हैं एक्सटेंशन? FL by AY which is same as F plus F by 2 L by AY, है ना? ठीक है गाइस, ये वाला अंडरस्टूड ना? ओके हाँ चलो। So then by that logic, if we take 1/4 of the sphere, then we'll have to consider f sin theta too, right? Yes हाँ, फिर f sin theta भी आ जाता है। yes तो सर अलग हो जाएगा ना the final result? केस में yes फिर 1/4 लेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसलिए ज्यादा सिंपल ये वाला है, तो मैंने कट ये वाला ले लिया। तो बट करेक्ट होगा, दोनों का फाइनल आंसर विल बी सेम। हाँ मतलब उन लोगों ने जो निकाला है फिर प्रॉपर ज्यादा एनालिसिस करना पड़ जाएगा, शायद उन लोगों ने सॉल्यूशन में ना कुछ छोटा एलिमेंट लेके किया है। हाँ so if we take 1/4 then the limits will change, right? And integral हाँ, फिर वो जो कि नीचे वाला आ जाएगा थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, थीटा बाय 2 की जरूरत थोड़ी ना है सर, फिर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसलिए ये ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू। हाँ अब जो है इसके बाद हाँ अब भाई FBD ऑफ द स्किन ऑफ द वाटरमेलन, और कौन कौन से फोर्सेस आएंगे स्किन में? सर तो फिर if we cut it in a quarter, तो then we'll get a different answer. Then हाँ फिर वो तो कॉम्प्लिकेट सिचुएशन, फिर उसमें देखो। But sir, like that guy said that the limits change, so isn't it possible because of the limits we end up getting the same answer? नहीं देखो, इसका एनालिसिस ही कितना टफ हो जाएगा ऐसे 3D फिगर का। सी ऐसे ये वाला चंक का एनालिसिस कितना टफ हो जाएगा ना, ये बेस्ट है क्योंकि ये जो आप इसका कट करोगे यहाँ पर और इसका एनालिसिस करोगे तो कितना टफ है कैलकुलेट करना फोर्सेस। ये लिमिट ही चेंज होगा ना सर, बाकी तो ऐसा कुछ होगा नहीं सर। हाँ इतना ये भी नहीं है, फिर सबका निकालना फोर्सेस को तो 4 टाइम हो जाएगा ना फिर तो आंसर जो भी होगा, तो निकालना पड़ेगा ना वो सब कैलकुलेशन। ये सिंपल केस है ना, ठीक है? तो अब जो है I agree that half में calculation is easier, sir, but I'm just asking if we cut it in a quarter, the limits change. So because of the changing in limits also, will we end up getting the same answer? नहीं फोर्स का क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशन में आ जाएगा। डू यू एग्री? फोर्स 3 डायमेंशंस में हो जाएगा, फिर फोर्स ऐसा रेडियल आउटवर्ड्स। Okay sir, got it, thank you. तो काफी ये हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। चलो अब इसके बाद और कौन से फोर्सेस आएंगे यहाँ पर?
सर रिएक्शन फोर्स किसका? अदर हाफ ऑफ वाटरमेलन अदर हाफ ऑफ दी नहीं, हमें तो वी आर ड्राइंग द स्किन में फोर्सेस बताओ। So the skin itself gives a reaction force, right? तो भाई स्किन में इधर फोर्स लग रहा है, तो ये वाला स्किन जो है लेफ्ट साइड क्यों नहीं भाग रहा है? Why this skin is not going towards this side? तो स्किन का भी तो कोई वेट होगा ना, उसके कारण भी कुछ लग रहा है। स्किन gives reaction force. सर वो एजेस पे जो फोर्स लगता होगा। यस, अब अरे बाकी ये वाला स्किन जो है यहाँ इसके साथ बॉन्डेड है ना, ये वाला पार्ट इसके बॉन्डेड है कि नहीं? यहाँ पर ये वाला स्किन का मॉलिक्यूल ये वाला स्किन के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डेड है, ये वाला इसके साथ बॉन्डेड है, ये वाला इसके साथ बॉन्डेड है। टेंशन आएगा क्या? यस तो वो टेंशन की वैल्यू भी एफएक्स के ही बराबर होगी, राइट? एग्जैक्टली। तो किसी जगह टेंशन अरे रुको तो अंदर का जो करते ना, रुको ना। देखो पहले ये एग्रीड की जो स्किन जो ये वाला स्किन है, इसके स्किन के मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग होगा। यस सर। चलो ठीक है। अब जब लिमिटिंग केस में जो है वो ब्रेक होने वाला होगा गाइस, ठीक है? मैक्सिमम केस में ब्रेक नहीं होगा स्किन के मॉलिक्यूल्स का बॉन्डिंग होगा सर। चलो ठीक है। हाँ पहले वो वाला हाँ जस्ट अबाउट टू ब्रेक होने को। यस जस्ट अबाउट, ठीक है। पहले रुक जाओ, पहले इसका करते हैं। पहले ये बताओ कि ये जो आया, हाँ ये जो एरिया, अब जो है से दिस एंगल इज थीटा गाइस, ये वाला जो है थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। एंड वापस ये वाला एंगल थीटा। चलो तो मतलब यहाँ पे जो ऐसा है इसका वर्टिकल के साथ एंगल इज थीटा। ये एवरीबॉडी एग्रीज ये वाला एंगल थीटा होगा करके? यस सर। यस सर। ओके, नाउ if this is dA, this angle is theta, तो ये कितना हो जाएगा? dA cos theta। dA cos theta। dA cos theta मतलब ये वाला एरिया का हिस्सा, और फिर उसका समेशन पाई आर स्क्वायर। dA cos theta का समेशन क्या होगा गाइस? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, गुड। So dA cos theta का summation is pi r square. See this poor area. So can we write dA cos theta का summation as pi r square? Yes. यहाँ तक किसको? करेक्ट सर मैंने Yes, यहाँ तक डाउट आस्क। हाँ ये नहीं समझ में। dA cos theta का समेशन। dA cos theta का yes हाँ प्लीज आस्क, किसका डाउट था? सर मेरा था रचित। हाँ dA cos theta का समेशन पाई आर स्क्वायर कैसे वो नहीं समझ। dA cos theta का समेशन pi r square कैसे हुआ? Who can explain? एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो उसका तो हम कंपोनेंट ले। एरिया आप लेते जा रहे हो ना, Whole area solved the area and the vertical direction and then took summation. देखो इसमें कैसे किया हमने, सी इसमें जो है सपोज अगर कि आप ये वाला लेते हो, हाफ पार्ट, ये ऐसा, ठीक है? हाफ पार्ट का ये वाला जो है, ये वाला देखो डीए, और डीए का cos थीटा मतलब एडजेसेंट आता है ये वाला, बिकॉज दिस एंगल वी शोड एज थीटा, तो डीए cos थीटा ये वाला हो जाएगा। रचित? यस सर। ठीक है भाई, dA cos थीटा ये वाला हो गया। इसको यहाँ खींचते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। फिर वैसे यहाँ पे dA जो लोगे उसका dA cos थीटा ये ऐसा आ जाएगा। यस सर। अच्छा सर समझा। फिर पूरे जब पूरे जो हाफ का करोगे ऐसे, देखो ये वाला, यस सर समझा। पूरे हाफ का करोगे सर बट दिस इज ओनली लाइक ऑन अ 2D surface, like 3D में भी ऐसा होगा, like how do we know that? अरे पूरे like we proved it for a semicircle, but how do we prove it for a hemisphere? नहीं, ये तो यही है ना। अरे ये तो पूरा देखो साइड व्यू में तो ये सर्कल ही आएगा ना,
इसका पूरे का एरिया, जैसे सपोज या ऐसे सोचो सर मतलब वो बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा वो तो समझा सर, बट लाइक ऑल द एरियाज विल ऐड अप टू पाई आर स्क्वायर, वो नहीं समझा सर। चलो एक ठीक है, एक मिनट जाओ, पहले ये बताओ कि अगर मान लो मैंने स्ट्रिप ऐसा लिया और यहां से लाइट पास कराई, लाइट, तो शैडो आ जाएगा इस रीजन में। यस सर। शैडो, अब ये बताओ उसका शैडो ये इतना होगा, डू यू एग्री? हाँ यस सर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, पूरे हेमिस्फीयर में ऐसे लिया वैसे ही सबके, और सबका यहाँ लाइट पास करा दी सब में। तो ये जो मैंने आधा ऐसे रखा और इसको पास कराया, तो ये बताओ कि यहाँ पे जो मेरा स्क्रीन है, इस स्क्रीन में शैडो का शेप क्या होगा? सर्कल। करेक्ट? यस सर। अंडरस्टूड ये वाला पार्ट? हाँ सर। Guys, ये everybody understood? So that's why dA cos theta का integration is pi r square. सर तो अगर dA sin थीटा चाहिए होता तो सेमी सर्कल आ जाता ना? dA sin थीटा, dA sin थीटा कौन सा आ जाएगा? dA sin थीटा तो नीचे वाला पार्ट आ जाएगा ना यार। तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना सर। dA sin थीटा मतलब you are तो asking dA sin theta तो हॉरिजॉन्टल पार्ट है। dA sin थीटा तो वर्टिकल वाले, मतलब ऐसे वाला चाहिए क्या, इधर से लाइन पास करा के देख रहे सर वो एक सेमी सर्कल हो जाएगा, राइट? dA sin So if we take a सेमी सर्कल ऑफ रेडियस। जयशंकर रुक जाओ, वाला करते हैं। पहले ये बताओ कि ये इसमें किसको डाउट है? सर तो बेसिकली वो cos थीटा का एन एरिया ऑफ सर्कल है, राइट सर? हाँ हाँ हाँ, पहले ये वाला समझ में आना चाहिए कि पाई आर स्क्वायर आया कि नहीं, ये वाला पाई आर स्क्वायर, ये सबको समझ में आया? यस सर। तो सारे dA का सम तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा ना, और dA cos थीटा का पाई आर स्क्वायर। यस, पूरे dA का सम होगा 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन dA cos थीटा का सम फॉर दिस हेमिस्फीयर इज पाई आर स्क्वायर। ओके सर, ओके सर। यस गाइस, हाँ पहले ये बताओ कि ये वाला समझ में आया कि नहीं? यस सर, क्लियर। यस सर। यस सर। अभी भी प्रॉब्लम हमारा सॉल्व नहीं हुआ है, हाउ टू प्रोसीड फ्रॉम हियर, इसके बाद कैसे करेंगे? अभी तो So the tension will be P naught pi r square. नहीं, स्किन में आपने फोर्स तो निकाल लिया, स्किन में फोर्स कौन सा निकाला? सर उसको ब्रेकिंग स्ट्रेस के और इक्वल करेंगे, मतलब वही यूज करेंगे। ओके, तो लेफ्ट हाफ ऑफ द स्किन जो है, लेफ्ट हाफ ऑफ द स्किन, तो लेफ्ट हाफ ऑफ द स्किन से फिर हाँ कैसे इक्वेट करोगे बताओ श्रेयांश? ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू y इनटू ब्रेकिंग स्ट्रेन, ऐसा कुछ। ओके, हाउ इज ब्रेकिंग स्ट्रेस डिफाइंड? सर सिग्मा। सिग्मा ब्रेकिंग फोर्स बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यस, ब्रेकिंग फोर्स बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये स्किन है ना, स्किन ऑफ हाफ वाटरमेलन, तो हाफ वाटरमेलन में ये वाला फोर्स तो आ गया हमारे पास P नॉट पाई आर स्क्वायर। स्किन में मतलब यहाँ पर इस एरिया पे ब्रेकिंग स्ट्रेस इज ब्रेकिंग फोर्स बाय एरिया, एरिया ऑफ मटेरियल, हाँ जहाँ पे मटेरियल है, तो ब्रेकिंग फोर्स विल बी सिग्मा बी इनटू एरिया। अब ये बताओ कि ब्रेकिंग फोर्स कैसे निकालें, यहाँ एरिया क्या लेंगे? Area will be the area of cross section of that glass piece. तो ग्लास का मैटर का एरिया कैसे निकालोगे? Sir, pi r plus delta r square minus r square. ओके, या फिर बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। हाँ, इसका फ्रंट व्यू देखोगे तो ऐसा दिखेगा कि नहीं? Yes sir. ओके, फ्रंट व्यू में ये ऐसा दिखेगा। फ्रंट व्यू में गाइस इसका लेंथ क्या होगा? इसको कट करो, इसका लेंथ, सर्कमफरेंस। सर्कमफ्रेंस, 2 pi r. सर्कमफ्रेंस विल बी दिस वन, तो लेंथ हो गया 2 पाई आर, आउटर लेंथ ना, बाहर का, और ये हो गया डेल्टा आर, तो दिस इज डेल्टा आर थिकनेस, दिस इज डेल्टा आर, तो उसका एरिया कितना आ जाएगा फिर? 2 pi r delta r. तो सिग्मा बी ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू 2 पाई
आर डेल्टा आर, दोनों को इक्वेट करेंगे। सो गाइस कितना आंसर आ जाएगा दोनों को इक्वेट करेंगे तो पी नॉट पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा बी 2 पाई आर डी आर। सो पी नॉट की वैल्यू पाई कैंसिल, अरे ये तो आर सेम है ना, आर 2 पाई आर, तो कितना आ जाएगा सिग्मा बी 2 पाई डेल्टा। सर पाई गेट्स पाई कैंसिल, तो पाई कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो सिग्मा बी 2 डेल्टा आर बाय आर, सिग्मा बी 2 डेल्टा आर बाय आर आ रहा है सर। Yes, सर हाँ। यहाँ पे मुझे ये नहीं समझा कि आपने ब्रेकिंग फोर्स को राइट डायरेक्शन में कैसे लिया। ब्रेकिंग फोर्स को राइट डायरेक्शन में क्यों लिया? ओके हाँ। हाँ सर। अब जैसे इसमें ये बताओ कि ये जो है ये वाला स्किन ऑफ द स्केलेटन, तो अंदर जो गैस है वो उस पे तो इधर फोर्स लगा रहा है, ये तो आ गया था हमारा। सर फिर हमने कौन सा क्वेश्चन किया, डायरेक्शन? सर आप लेजर से बता सकते हो। हाँ सॉरी हाँ, सी स्किन ऑफ द स्केलेटन पे जो गैस है वो उस पे इधर फोर्स लगा रहा है। हाँ सर। चलो फिर हमने क्वेश्चन किया कि व्हाई इफ द गैस इनसाइड इज अप्लाइंग फोर्स ऑन द स्किन ऑफ द स्केलेटन इन लेफ्ट डायरेक्शन, व्हाई दिस हाफ पार्ट इज नॉट मूविंग दिस साइड। सर क्योंकि वो दूसरे हाफ से बॉन्डेड है तो उसका Yes, टेंशन लगेगा। तो दूसरे हाफ से जो मॉलिक्यूल से बाउंडेड है तो मॉलिक्यूल का फोर्स इस पे किधर लगेगा? राइट साइड लगेगा। हाँ सर। तो मॉलिक्यूल का फोर्स राइट साइड, वही तो है मॉलिक्यूल का फोर्स ब्रेकिंग वाला। अच्छा सर वो ब्रेकिंग वाला ही मॉलिक्यूलर फोर्स है। यस, अरे मॉलिक्यूल वही तो है, मॉलिक्यूल का फोर्स ब्रेकिंग वाला, हाँ ब्रेकिंग यस सर, अब टूटने यस वाला सर, है। यस। हाँ सर समझ गया, थैंक यू सर। गाइस ये एवरीबॉडी अंडरस्टूड? Yes sir. I just found out that you told that we took half the watermelon because we just needed the horizontal component, right? So we took the half watermelon because Correct, sin correct. theta वाले component का कोई use ही नहीं था इस question में। यस हाँ। Okay sir. अदरवाइज फिर वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल लेंगे तो एक एलिमेंट में 3D वेक्टर ना, रेडियल कोऑर्डिनेट्स आ जाए, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, राइट? Yes sir, बहुत complicated हो जाएगा। हाँ। But how will tension be the braking force? Because it's acting inwards and that too in horizontal direction. So how will it cause the glass sphere to burst? No, tension is not causing the जो है अंदर का pressure is causing this spherical glass to burst. अच्छा सर, तो ब्रेकिंग फोर्स तो वो प्रेशर इनटू dA cos थीटा ही होगा जो हम लोग ने निकाला। नहीं, देखो हमने किसका ड्रॉ किया? एफबीडी स्किन का ड्रॉ किया, राइट? स्किन को कौन जैसे हाफ पार्ट ये स्किन को कौन बाहर ले जाना चाहता है? सर द गैस का वो इनसाइड का प्रेशर से जो उसका फोर्स हो रहा है। यस, और उसको ब्रेक होने से कौन बचा रहा है? मॉलिक्यूल का फोर्स। ओके सर, गॉट इट सर। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस फोर्स। यस हाँ। So the sigma b we had to introduce the question में नहीं दिया, right? क्वेश्चन में हाँ, एक्चुअली इरिडोर में शायद मेटेरियल का नाम दे दिया होगा तो इसलिए क्लास दे दिया है ना, तो उन्होंने डायरेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि पीछे टेबल से कैलकुलेट करो, लेकिन डोंट वरी, क्वेश्चन अपन को जब क्वेश्चन देंगे तो उसमें दे विल गिव यू। ओके सर। इवन मैंने एक शीट दिया था शायद, एक कुछ शायद सेकंड शीट कुछ दिया था, उसमें भी क्वेश्चंस है शायद वाला। किसी ने ट्राई किया था क्या गाइस वाला? सेकंड एक मैंने और इलस्ट्रेट होमवर्क का शीट दिया था, उसमें कुछ उस टाइप के क्वेश्चन दिए थे जिसमें सिग्मा भी मेंशन्ड है। तो ये सारे इलस्ट्रेशंस होमवर्क है? उसके बाद वाले क्या? मतलब जो भी आपने सर भेजे थी? नहीं गाइस, अपने पास देखो क्लास में टाइम तो मिलेगा अपन को, तो ठीक है। ये शायद ये वाला चैप्टर मैं थोड़ा ज्यादा ही टफ पढ़ा रहा हूँ, तो ठीक है कोई बात नहीं, अपन करते जाएंगे। कुछ क्लास में करेंगे और ये ऐसा करते जाएंगे, पूरा होमवर्क नहीं करेंगे ऐसा, अदरवाइज काफी स्टूडेंट्स को ये हो जाएगा। तो सर ये वाला जो अभी आपने कराया, इसमें आपने जो 2 क्वेश्चन कराए, बचे हुए क्वेश्चन होमवर्क ही है ना हमारे लिए?
बचे वाले ठीक है, अपन बचे वाले भी कुछ कुछ करते जाएंगे, नो प्रॉब्लम, करते जाएंगे। चलो, शायद कुछ कुछ सम्स मैंने किए थे, कुछ कुछ दिए हुए हैं। किसी ने ट्राई किया क्या वाले सम्स? कौन से सम सर? यही वाले, इसी पीडीएफ के बाकी सम्स किसी ने ट्राई किया था क्या? नहीं सर। नहीं Sir, its answers are given, sir. ओके, नॉट गिवन क्या? ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। ओके गाइस, तो फिर ये वाला हो गया। हाँ, एक ये वाला गाइस याद रखना, ये प्रूफ, दिस प्रूफ आई विल यूज द सेम प्रूफ इन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में हम पढ़ेंगे सो बबल, बबल के अंदर प्रेशर ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसी वाला, इसमें किसी Sir, को I didn't understand the answer, sir. इसका आंसर नहीं आ रहा है? No, sir. So is the answer just the braking force? ओ, इसमें आंसर क्या निकालना था? इसमें So आंसर P नॉट इंटरनल निकालना था। प्रेशर, इंटरनल प्रेशर। ओ, ये निकालना है, ये P नॉट वी वांट टू फाइंड। P नॉट इज Okay, sir. P नॉट इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स 2 dr डेल्टा r by r. So do we know its values? Okay, no, we have to get in terms of the variables only. Variables के terms में रिपोर्ट कर दो, that is fine. एक बार आंसर चेक करना उसमें क्या है? Yes, sir. The answer they've given sum Yes, sir. 48. नहीं, उसके पहले वेरिएबल का टर्म में यही आंसर है। हाँ, We have written 2 sigma m delta r by r. सर सिर्फ ब्रेकिंग स्ट्रेस का वैल्यू अननोन है, बाकी सब दिया हुआ है। ओके। Yes, sir. ओके गाइस, हाँ, तो ठीक है। चलो, हाँ, अभी देखो इसमें अगर देखोगे तो some sums we have done also. See, I guess okay, you are जैसे अगर कि मान लो, ठीक है, कर लेते हैं। चलो, सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट करते हैं। चलो सर, मुझे इसमें थोड़ा सा एक डाउट था। हाँ सर, इसमें हम ये assumption ले रहे हैं कि it is always going to break about the axis which is passing through the center into two equal halves, ना? ये assumption है। नहीं, वहां पर किसी भी एलिमेंट का लोगे तो एलिमेंट पे फोर्स ऐसे लगेगा। हम बोल रहे हैं ब्रेक हो रहा है ना, तो हर जगह का हर एलिमेंट हर जगह का जो एलिमेंट है वो ब्रेकिंग पे आ चुका है। जैसे कैसे, अगर मान लो ये बर्स्ट हो रहा है, तो बर्स्ट हो रहा है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं, हर जगह से बर्स्ट होने वाला है। यहाँ से बर्स्ट, यहाँ से हर जगह का। अच्छा। हाँ, ये समझा। हर जगह से बर्स्ट होने वाला है। तो हमने बोला ठीक है भाई, हर जगह से बर्स्ट होने वाला है, तो मैंने बोला ठीक है, हाफ पार्ट कट कर लेते हैं और उसका एनालिसिस कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है, समझ गया सर, थैंक यू सो मच। हाँ सर, यहाँ पे एरिया के लिए आपने एरिया ऑफ द मटेरियल लिया है ना, मतलब यस जो होलो स्फीयर है उसका मटेरियल। यस, क्योंकि जो है स्किन पे है ना, स्किन जो है, ये वाला स्किन पे फोर्स कहाँ लगेगा? स्किन पे, तो स्किन का एरिया लेना पड़ेगा, राइट? हाँ सर। हाँ, तो इसलिए स्किन का ही लिया। हाँ, चलो, इसका बी पार्ट भी ट्राई करते हैं। इसका ए पार्ट गाइस, बाकी सम्स इतने टफ नहीं होंगे। इसके बुकलेट के आप करोगे तो उतना टफ नहीं है। हाँ, तो ये इरिडो मैंने पहले करा दिया, इसलिए थोड़ा टफ जा रहा है। Have you guys tried the booklet sums? तो वो बुकलेट थोड़ा बीच में थोड़ा कैलकुलेशन हो जाता है, टफ वैसे नहीं है। ओके बट ठीक है, वी हैव वन एक्स्ट्रा क्लास दिस वीक, सो मैं थोड़ा सा उसमें भी प्रैक्टिस करवा दूंगा एटलीस्ट, ठीक है? सर, एचसीवी में से भी आई गेस कुछ सम्स अपने वो कंप्रेशन और बल्क मॉड्यूलस पे दिए हैं। ओके, बल्क मॉड्यूलस अभी इसलिए मैंने पढ़ाया नहीं, ताकि अनलेस आई कंप्लीट दिस वन, उसको मैं स्टार्ट नहीं करना चाहता था। यस सर। So how much to complete from the booklet? बुकलेट में बुकलेट वाला तो जो सम्स है वो वाले आप कर सकते हो, मतलब सम्स आई हैव गिवन। सर उतना ही ना जितना आपने पिछले क्लास मंडे या ट्यूसडे को होमवर्क दिया था। सेम। सर उसमें 2-3 सम्स में डाउट था। बुकलेट के क्या? हाँ सर कुछ क्वेश्चंस में बल्क मॉडुलस वाला था, उसे अभी छोड़ देना। बल्क वाला मॉडुलस वाला भी नहीं करना है। यस, ओके सर। कौन सा सम था? ऐसे टफ था क्या उसमें कुछ? सर एक वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आई गेस 16 था, वो टेम्परेचर पे कुछ डिपेंडेंस था, लाइक वो वाला नहीं समझा। ओके ठीक है।
हाँ सर, टेम्परेचर डिपेंडेंट 3-4 क्वेश्चन थे उसमें, एक्सरसाइज 1 में भी एक था और एक्सरसाइज 4 में भी एक। ओके ओके ओके, वो अपन ने किया नहीं है क्या? ठीक है, चलो जल्दी वाला 1.291 का ए पार्ट कैसे करेंगे? यहाँ पर you have Sir, in this we'll take a cylinder, right? okay cylinder, फिर So फिर same वही DF like half cylinder लेंगे। चलो ठीक है, सिलेंडर का करो। तो सिलेंडर के लिए जो है, सिलेंडर को कट करोगे, हाउ विल यू कट? सर एक्चुअली ओके, एक्चुअल कट करो। तो एक्चुअल कट करोगे ऐसा, तो ये दिस इज अ लार्ज पाइप, उसको हमने ऐसा कट कर दिया। ओके, इसको कट किया, फिर और किसी एक हाफ का इक्विलिब्रियम लिखेंगे। हाँ, फिर बताओ। एक हाफ का इक्विलिब्रियम गाइस कैसे करेंगे? इसका स्किन, हाँ, एफबीडी ऑफ द स्किन। एफबीडी ऑफ द स्किन, हाँ बताओ। क्या क्या फोर्सेस आएंगे भाई? कुछ एल लेंथ का कट किया मान लो, हाँ एल लेंथ का ऐसा। सर ऊपर और नीचे फोर्सेस काटे जाएंगे तो सिर्फ साइड का इंटरनल फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में देखना, इस साइड और इस साइड के फोर्सेस को बैलेंस करना है। इस साइड का फोर्स क्या लेंगे यार? पी नॉट इंटू एरिया क्या होगा यहाँ पर? एरिया L into 2R. L into 2R, हाँ, लेंथ इंटू डायमीटर। वेरी गुड। किसने बोला था आंसर? हु सेड? रुचिर सर। रुचिर गुड। हाँ, एरिया गाइस, ये वाला पूरा एरिया ना, इसका शैडो जो आएगा L into 2R, और राइट साइड पे So I didn't understand L into 2R. ओ ये वाला रुचिर, हाँ एक्सप्लेन L into 2R क्या है? सर वही DA cos थीटा हमने जैसे पिछली बार लिया था उसी तरीके से इसमें भी हमने लेंथ इंटू 2R कर दिया। जैसे सी if you take the integration of DA cos theta, it will be this projected area. Projected area means अगर लाइट पास करोगे तो जो शैडो बनेगा। Yes sir. Okay, understood. तो से यहाँ पे अगर शैडो लाइट पास करोगे साइड से, so what will the shape of the shadow here you will get is rectangle. तो rectangle. Okay sir. Okay, understood sir. हाँ, तो इसके बाद कैसे करेंगे यार बताओ? इसके बाद का सिग्मा इंटू एरिया, we'll equate sigma into area with P naught L2R. एरिया, हाँ तो एरिया की एरिया क्या रहेगा बताओ भाई? 2L plus 2D into एरिया, ये वाला एरिया कितना होगा? अरे ये वाला एरिया क्या होगा? L into D, L into DR, L into DR. एरिया 2L into DR, Yes. 2 times this area। दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। P naught L2R is equal to सर ऊपर वाले पार्ट में थिकनेस क्यों नहीं है सर? ऊपर वाले पार्ट में सिलेंडर है ना, तो साइड्स में ही वॉल होंगे ना ऊपर। नहीं, ये तो किसी एक पार्ट का कट है ना, ऐसा ये कट किया हमने। तो नहीं सर, जहाँ पर आपने रेडियस ड्रॉ किया वहां पर भी कोई ना कोई थिकनेस तो होगी, राइट? ओहो नहीं, दिस इज अ पाइप, दिस इज अ बिग पाइप। सी पाइप ऐसा है, पूरा बड़ा है, पाइप ऐसा पूरा बड़ा। उस पाइप का ये वाला पार्ट उसका ले रहे हैं, राइट? ओके सर, तो मतलब ये बीच से आपने कोई ऐसे ही एक सेक्शन उठाया है? यस हाँ, फिर मतलब वो पार्ट एम्प्टी है। ओके सर, तो एक सेक्शन देखा और उसका एनालिसिस कर रहे हैं। सर एक बार आप एरिया एक्सप्लेन कर सकते हैं? ओके, एरिया, हाँ देखो एरिया के लिए जो है, एरिया के लिए हमने क्या किया? सी इंटीग्रल ऑफ DA cos थीटा। सर नहीं, वो वाला नहीं, इसमें ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया वाला। वो ब्रेकिंग स्ट्रेस, सी स्किन कौन सा है? पाइप को जैसे अगर कोई पाइप को आप काटोगे
तो उसका मैटर, ये मैटर वाले मॉलिक्यूल्स यही वाले होंगे यहाँ पर और यहाँ पे होंगे. दिस लेंथ इज L, दिस थिकनेस इज dr. तो ये शैडो रीजन, दिस रीजन विल बी L into dr, जहाँ पे ग्लास के मॉलिक्यूल्स हैं. ग्लास के मॉलिक्यूल्स यहाँ L into dr और यहाँ पे L into dr. यस सर. तो L into dr 2 times L into dr. यार इससे आना चाहिए, देखो ट्राई करो आंसर क्या आ रहा है. So area of glass material L into pi r होना चाहिए. एरिया ऑफ द ग्लास, आपने जहाँ पर कट किया है सिर्फ वहाँ का ही ग्लास कंसीडर किया है. हाँ देखो हम ये जो सेक्शन देख रहे हैं, तो एरिया ऑफ द ग्लास मॉलिक्यूल्स, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपने उसको आधा कट कर दिया. तो यहाँ पे ग्लास के मॉलिक्यूल्स हैं इस रीजन में, और यहाँ पे ग्लास के मॉलिक्यूल्स हैं. एक सिलेंडर पाइप को कट करोगे तो आपको कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेंगे ये वाले. यस सर. तो यहाँ पे ग्लास के मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पे ग्लास के मॉलिक्यूल्स होंगे. हाँ यस सर. सो ये वाला एरिया लेंगे तो ग्लास के मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन दिस रीजन L into dr, L into dr. तो L into dr into 2. ओके सर. गाइस इससे आंसर कितना आता है ये वाला? और हम लोग बेसिकली वो ग्लास के वो थिकनेस पे फोर्स कंसीडर कर रहे हैं ना. यस यस यस. हाँ ओके. सिग्मा into thickness by p. सिग्मा into dr by r. यस. गाइस देखो ये समझ नहीं आया क्या? देखो इसमें क्या कर रहे हैं. सी हमने, हमारे पास एक पाइप ऐसा है ना, एक पाइप. इस पाइप का हमने क्या किया, इस पाइप को ऐसे काटा. ये प्लेन में, हाँ प्लेन पे आपने कट कर दिया है. सी ऐसा एक चाकू रखा और ऐसा इस प्लेन में आपको उसने अपने सेंटर से पास करा के कट कर दिया. तो कट करेंगे तो जो है दिखेगा ऐसा. तो उसका भी हम क्या कर रहे हैं, जो बड़ा पाइप है ना, ये जो पाइप है, इट्स अ लॉन्ग पाइप. इस पाइप का हम क्या कर रहे हैं, इतना पार्ट, यहाँ जो पार्ट है उसका, उसके भी ये वाले पार्ट का, जैसे अगर ये अंडरस्टूड ना, हम ये वाला ले रहे हैं, इसका ले रहे हैं, है ना. यस सर, मुझे वही, मेरे को लगा आप किसी एंड का ले रहे हैं तो वो भी एंड एनक्लोज्ड है सर, तो वहां पर भी एक थिकनेस होनी चाहिए, मैंने ऐसा सोचा. पर अभी आप बीच का ले रहे हैं तो समझ में आ रहा. ओके ओके. हाँ ठीक है. उसके सॉल्यूशंस में देखना, उसके सॉल्यूशंस तो मुझे नहीं आया, इसलिए मैंने ये वाला मेथड से बताया. तो जो मैंने सॉल्यूशंस भेजा वो समझ में नहीं आया था एरिडो के जो है, तो मैंने ऐसे कट करके लिया था. ठीक है. ओके गाइस, तो ये वाला, ये दोनों समझ में आया ना दोनों गाइस? यस सर. एंड हाँ गाइस, डोंट वरी, इसके लिए नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा इजी एग्जांपल्स लेके जो है अपन पहले बुकलेट पे कंसंट्रेट करेंगे, और फिर उसके बाद सम्स के लिए विल टेक टाइम. सर मतलब कुछ लोग बोल रहे थे कि आपने कोई होमवर्क में टेम्परेचर डिपेंडेंट सम्स दिए थे. सर वो कौन सा है सर? एक्चुअली मैंने होमवर्क सॉल्व किया लेकिन मुझे कोई मिला नहीं वैसा. एक मिनट. हाँ मुझे भी बताओ यार, एक मिनट. हाँ जय. सर एक्सरसाइज 5 मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आई गेस 16th वाला. एक मिनट. तो 16th वाला एक्चुअली स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ पर डिपेंडेंट है. हाँ सर. एक मिनट. हाँ टेम्परेचर नहीं है उसमें. एचसीवी में टेम्परेचर मतलब एक्सपेंशन रिलेटेड थे थोड़े. एक मिनट, इसमें कौन सा वाला बुकलेट में ना, यू आर सेइंग? हाँ बुकलेट में कौन सा पेज है? श्रद्धा. सॉरी सर, मैंने कोई और क्वेश्चन देखा होगा. नहीं, एक बार प्लीज टेल कौन सा था? सर 16th वाला, इसमें डाउट है. एक मिनट. हाँ 16th वाला जो है, इज इट फ्रॉम जो आईआईटी प्रीवियस ईयर? 96 पेज 96. विंडो सर, विंडो. ओके ओके ओके. और ओके, यहाँ पर 16th वाले में आपको बताना है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, डक्टाइल कौन सा ज्यादा है, दैट वन ना. गाइस ये वाला है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ डक्टाइल. हाँ यस सर वही है. इसमें जय माने व्हाई डू यू टेक टेम्परेचर हियर? सॉरी सर, मैंने कोई और क्वेश्चन देखा. ओके ओके ओके. एंड सर और एक डाउट था. ये एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 2 का पेज नंबर 89. हाँ यस सर, मुझे भी उसमें डाउट था सर.
क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन सी और डी में डाउट था, कौन सा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5। ओके 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 ठीक है। हाँ सर मुझे पूछना था सी एंड डी में कौन सा सर। वो टेम्परेचर वाला सर वो इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 में फोर्थ वाला एक है। एक मिनट जाओ, ठीक है, इन चैप्टर एक्सरसाइज का। पर सर वो बल्क मॉडुलस का है, इसके कारण मुझे लगता है एक मिनट जाओ, इन चैप्टर एक्सरसाइज। हाँ एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 7 टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 7 पेज 80। ओके यू आर सेइंग कि जो है डायग्राम शोज द चेंज इन एक्स हायर टेम्परेचर पे। हाँ ये सर दिस वन आल्सो। हाँ सर, इसमें तो सर स्लोप्स कंपेयर करने हैं ना। सॉफ्ट हो जाएगा अगर मान लो, देखो अगर कि मान लो सपोज कोई मटेरियल है, स्टील है मान लो, हाँ स्टील को पकड़ो भाई, स्टील या आयरन को ही पकड़ लो, हाँ उसमें हम जो है सॉल्ट्स एक्सपेरिमेंट कराते हैं, हाँ तो इलास्टिसिटी अगर मान लो उसको गर्म कर दिया तो किस केस में रीस्टोरिंग फोर्सेस भाई डेवलप ज्यादा होंगे फॉर अ गिवन स्ट्रेच। रीस्टोरिंग लेस टेम्परेचर, राइट? लेस टेम्परेचर वाले में, राइट। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होना चाहिए, उसका कम हो जाना चाहिए ना। सर क्यों सर नहीं समझा। सर कैन यू रिपीट? नहीं समझा। तो जैसे हाई टेम्परेचर पे बताओ कि रीस्टोरिंग फोर्सेस मतलब वो किसको टेंड करेगा, लिक्विड को की तरफ टेंड करेगा, मॉलिक्यूल्स मतलब हाई टेम्परेचर पे सॉलिड से स्टेट किधर जाने की टेंड करेगा बताओ। लिक्विड सर। लिक्विड की तरफ। तो लिक्विड में तो भाई रीस्टोरिंग फोर्सेस कहाँ होते हैं, करेक्ट। यस सर, वो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कम हो जाएगा इसकी वजह से। कम हो जाएगा तो रीस्टोरिंग फोर्सेस कम नहीं हो जाएंगे, तो रीस्टोरिंग फोर्सेस कम हो जाएंगे तो इलास्टिसिटी कम हो जाएगा ना। Okay, sir. So higher the temperature, lower is the magnitude of the restoring forces. टेम्परेचर बढ़ेगा तो यस रीस्टोरिंग फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के बीच का कम हो जाएगा। Okay. सर ये तो हम वैसे भी कर सकते हैं ना, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर लीनियर एक्सपांशन की वजह से एक L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के तो वो बढ़ेगा, इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स कम होगा। नहीं ऐसा सोचेंगे कि अगर कि मैंने मटेरियल पहले अच्छा था, मतलब नॉर्मल अच्छा था, हार्ड था, तो फिर वो लिक्विड की तरफ जा रहा है, तो फिर बीच में जो है वो थोड़ा सा उस टाइप का हो गया ना, पोला जैसा, मतलब आई मीन ना सॉलिड नहीं है, बीच वाला स्टेट हो गया ना यार। तो अच्छा ओके। तो उसको खींचेंगे तो और फैल जाएगा ना वो, तो रिस्टोरिंग फोर्सेस अंदर कहाँ डेवलप होंगे उसमें। ओके सर, गॉट इट सर। So you are taking doubts now, like only one small doubt. Okay, हाँ Or you'll take it in the doubt lecture. एक वहाँ जल्दी से बता, फिर मेरा एक और एक सर एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट और फिफ्थ वाला, फर्स्ट में ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा वो डाउट, पेज नंबर 88। सर ए बी क्यों नहीं होगा? एक्सरसाइज 2 में फर्स्ट वाला क्या उसको ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा, लाइक स्लाइड्स ऑन अ रफ सरफेस में चेंज इन लेंथ क्यों नहीं होगा। इलास्टिक मेटल रॉड फोर्स नहीं होगा तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा एंड देन जो टेंशन आप अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे देन टेंशन विल टर्न आउट टू बी जीरो। नहीं ये बताओ इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन क्या है भाई, ये तो बताओ। सर वो लोग को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देना चाहिए था तो चेंज इन लेंथ नहीं होगा। एक्सेलरेशन, हाँ अशोक एक्सेलरेशन नहीं है ना इसमें। नहीं दिया। अगर स्लाइड कंसीडर करेंगे, अगर बॉडी स्लाइड कर रहा है तो चेंज इन लेंथ होगा। नहीं सर, मतलब आई थॉट कि only friction is acting and there is no external force like if any other force acting, only like friction is acting and which is providing deceleration. So उससे मतलब like friction equal to ma से ऐसे कुछ करके and then like मतलब एक छोटा सा एलिमेंट लिया like x डिस्टेंस पे, तो उसमें टेंशन जीरो आ जाता है। अरे नहीं ये बच्चा ऐसा बोल रहा है शायद कि ना ये वाला बोल रहा है क्या अनवय कि ऐसा मान लो इंक्लाइन ले लो और नॉर्मल प्लेन पे, लेकिन नॉर्मल प्लेन पर आगे चलो। सरफेस बोला है भाई, सरफेस को रफ कर लेता हूँ ना मैं ये वाला, तो अगर मान लो इस केस में दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, इस एंड पे भी जीरो इस एंड पे भी जीरो फोर्स ना। बट मोशन स्पेसिफाई नहीं किया है क्वेश्चन में। ओके मोशन स्पेसिफाइड नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं दिया। ओके ठीक है सर आई जस्ट थॉट कि सिर्फ फ्रिक्शन एक्ट करेगा एंड इट्स डिसेलेरेटिंग, मतलब इट्स स्लाइडिंग एंड इट्स कमिंग टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम, सो मतलब ओनली मतलब सिर्फ पीछे एक्सेलरेशन होगा और कुछ नहीं होगा, तो उसमें फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ फ्रिक्शन एक्ट करेगा।
एंड देन एक इंटरनल फोर्स वगैरह में टेंशन जो होगा वो 0 हो जाता है। ओके 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 ओके, यू आर सेइंग कि जो dmg sin थीटा और df फ्रिक्शन बैलेंस कर लिए तो इंटरनल मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ही नहीं आया किसी सेक्शन पे देख रहे हैं तो लाइक दैट। यस सर, मतलब जब मैं लाइक तो T और T प्लस dt नहीं होगा, T एंड T प्लस dt नहीं होगा तो मतलब चेंज ही नहीं हो रहा है ना कहीं फ्रिक्शन। हाँ सर। ओके ठीक है ठीक है। हाँ जय वो भी ठीक है ना, मोशन एक तो पहला मोशन स्पेसिफाइड ही नहीं है और ये वाला केस भी हो सकता है ना जिस केस में 0 आ जाए। ओके सर। सर वो फिफ्थ में ऑप्शन सी होगा और करेक्ट या डी? सर मुझे नहीं समझा सर वन का डी, कैन यू एक्सप्लेन अगेन प्लीज? व्हिच वन? फर्स्ट वाला क्या? हाँ फर्स्ट का डी। देखो फर्स्ट में जो है, फर्स्ट आई गेस दिस गाइस आर सेइंग कि यहाँ पर ये जो है कहाँ पे रखा है, अशोक वो बोल रहा है कि बताया ही नहीं है और इसका मोशन कैसा है। हाँ इफ यू टेक तो सब वो ऑप्शन कब होगा करेक्ट आंसर, जब हर एवरी कंडीशन के लिए सेटिस्फाई हो। डू यू एग्री? यस सर। हाँ तो वो बोल रहा है कि अन्वय ने क्या किया, एक केस ले लिया जब ये वाला जब कांस्टेंट वेलोसिटी है मान लो, हाँ v इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जब बॉडी आ रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जब आ रहा है तो अगर एक एक मॉलिक्यूल पे देखोगे तो dmg sin थीटा और ये df बैलेंस हो गए। तो किसी yes, sir. किसी एक फिर उस केस में क्या होगा, यू डोंट नीड एनी मटेरियल फोर्सेस, राइट? ओके सर समझ गया। तो मतलब he is saying that if the velocity is constant, so we are also providing an external force and the friction is providing the force which get cancelled out. Yes, हाँ तो उस केस में मटेरियल के अंदर कोई स्ट्रेचिंग फोर्स डेवलप ही नहीं हुआ। ओके सर। उस केस में 0 हो जाएगा। यस सर। ये तो एक स्पेसिफिक केस है ना, और उधर से स्लाइड ऑन अ रफ सरफेस लिखा है। यस यस तो नहीं तो स्लाइड्स ऑन अ रफ सरफेस, so that means if the option D has to be true, it must satisfy all the cases. So it must satisfy this. It must satisfy this case also. So, but it is failing in this cases, so we cannot take that. No. Is this okay? Yes. Yes. Sir, A option क्यों नहीं होगा? A option. भाई A option का बताओ यार कैसे करा उन्होंने? सर A ऑप्शन में भी सेम ही होगा ना? A ऑप्शन में भी देखो क्या हो रहा है कि अगर मॉलिक्यूल ये फ्री फॉल हो रहा है ना? The weight itself is providing the required force for the acceleration, so tension की जरूरत। तो इस केस में जो है दोनों साइड्स मटेरियल में इलास्टिक मॉलिक्यूल में मतलब जैसा सोचो ना कि ये पूरे मॉलिक्यूल्स का क्लस्टर है और ऑल मॉलिक्यूल्स का क्लस्टर दे आर ऑल फॉलिंग विद एन एक्सेलरेशन g, तो यहाँ पर कोई फोर्स ही नहीं आ पाया उनके बीच में, राइट? ऑल आर इन द फ्री फॉल। देखो ऐसा सोचो ना कि मान लो ये ब्लॉक्स है, ये ब्लॉक्स को छोड़ दिया जाए 2 kg 3 kg का ब्लॉक, व्हाट विल बी द टेंशन हियर? 0 फ्री फॉल में तो 0 है। तो वैसे ही हम सोच सकते हैं जब एक पूरा एक स्ट्रक्चर एक सिलेंडर गिर रहा है तो सोचो कई सारे मॉलिक्यूल्स फ्री फॉल, तो उनके बीच का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 0। यस सर। हाँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 0, तो देयरफॉर यहाँ पर एक्सटेंशन विल बी 0। करेक्ट ना? हाँ यार जय कौन सा बोल रहा था अभी? वो फिफ्थ वाला सर, इसी में एक्सरसाइज 2 में। कौन सा पेज है सर? नेक्स्ट पेज। एक मिनट अब डाउट लेक्चर सारे ले लोगे? हाँ ओके ठीक है, फिर ये वाला जय बाद में करें। हाँ ओके सर, नो प्रॉब्लम। मेरा भी लेक्चर है। हाँ तो गाइस इसमें थोड़ा नेक्स्ट क्लास में थोड़ा इजी कराऊंगा समझा, जो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? सर आप दिखा सकते हो एक सेकंड स्फीयर? व्हिच वन मानस? तो द स्फीयर पेज वो आप दिखा सकते हो एक सेकंड? और ये वाला नहीं सर, जिसमें हाँ सर ये वाला एक सेकंड। यस मानस। हाँ नहीं सर बस कॉपी करना। ओ कॉपी करना। थैंक यू सर। ओके गाइस, हाँ आ गया? एनी डाउट? थैंक यू सर। देवेश? यस सर डन, थैंक यू। डन? हाँ ओके देवेश आज का आया ना समझ में? Where is देवेश? अशोक? यस सर। अंडरस्टूड ना? यस सर। ठीक है थोड़ा सा फिर आगे इजी करेंगे ना। चलो हाँ बाय। हाँ थैंक यू ऑल, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू गाइस, बाय।